जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। ये तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮਿਠਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੰਮ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ 3-3 ਹਫ਼ਤੇ ਅਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਖਰੀਦਵਾਤੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, 1 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਆਪੇ 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 ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਰੰਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਿਰਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਰੰਗੋਲੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਚਾਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ 46 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ 46 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੇ 46 ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਂਡਲਸ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆ, ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅੰਕਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਂਡਲਸ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਟੂਕੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਸਦੱਸਿਆ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਵਰਨਲੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु महाराज सरस लव यू गुरु महाराज। लव यू लव यू लव यू लव यू टू गुरु महाराज। आओ चलिए गुरु महाराज जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। लव यू लव यू लव यू लॉर्ड गुरु महाराज जी। जय गुरु जी संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ और धन्यवाद वंदना करती हूँ। और सबसे पहले गुरु जी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। शंकर जी को भी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, हर उस शरीर के कतरे कतरे का शुक्राना 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 शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। छोटे बच्चे की तरफ से, बड़े बच्चे की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती। श्री गुरु चरणों में हर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देते रहना, बच्चों को ब्लेस करते रहना। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का इस टाइम सुबह के 8:30 हो रही हैं। गुरु जी कहते हैं कि बेटी सत्संग कर ले, कल भी नहीं करा तूने। तो कल दिवाली का दिन था। गुरु महाराज जी सॉरी, मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला। आप सब जानते हो अपनी बेटी का। गुरु महाराज जी आप जी के श्री चरणों में बार बार धन्यवाद वंदना करती हूँ। गुरु महाराज जी आप कहते हैं कि बेटी अपने कष्ट कटवा ले, बच्चों के कष्ट कटवा ले, सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर ले। तो आप जी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी आप जी के सामने बैठी हूँ। आप जी तो मुस्कुरा भी रहे हो कि मेरी बेटी अब सत्संग कर रही है। तो जो बुलवाना है आपने बुलवाना है। आप जी अपनी बेटी के सदा अंग संग सहाय हैं और इसी तरह से अपने बच्चों के अंग संग सहाय बने रहना। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे ऊपर बहुत संकट भारी, अभी बहुत ग्रह इतने भारी संकट हैं कि लोगों के किए हुए भी अब मैं उनके ऊपर वापस भेज रहा हूँ। तू बिल्कुल टेंशन न ले, बिल्कुल फ्री हो जा और सत्संग शेयर कर, क्योंकि अभी 4-5 दिन तो बहुत कष्ट है, क्योंकि करने वाले पीछे नहीं हट रहे हैं। और थोड़ा संभल के रहना। संगत जी मुझे तो समझ नहीं आती है कि गुरु महाराज जी के सारे बच्चे हैं, उनके कृपा से ही संसार में आए हुए हैं, फिर ये अनजाने जाने अनजाने काम क्यों कर रहे हैं।
संगत जी, उनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं कल ये उल्टा वार हमारे ऊपर भी हो सकता है, तो हम ऐसा क्यों करें। कहते हैं पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आजकल के बच्चे पढ़े लिखे भी अनपढ़ हैं। इससे कहते हैं ना, जो पहले के हैं पढ़े लिखे भी पढ़े लिखे तो हैं पर अनपढ़ हैं। समझो, कोई मन में भाव नहीं आता, कोई ऐसे मन में कृतियाँ नहीं आती हैं कि किसी के ऊपर उल्टे सीधे काम करें और किसी का दिल दुखाएं। आज मुझे समझ नहीं आती है, इतना ज़्यादा प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है कि हम ये काम करने से पीछे ना हटे, इस काम को करने से चूके ना। संगत जी, ये कैसी जिंदगी का सफ़र है। पल भर की ये जिंदगी, श्वास ये अनमोल, फिर भी समझ नहीं आती ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमारे को तो अपने मालिक का लख लख भाग्य होना चाहिए, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। हर पल का, हर समय का, उस कीमती समय का, उनके आशियाने का, आशीर्वाद का, हर पल का तहे दिल से शुक्राना करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ा हुआ है और अपने चरनी में निवास स्थान दिया हुआ है। तो गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर अपने साथ हमारे को अपने मालिक ने ना जोड़ा होता तो शायद आज हमारा क्या हाल होता, और सारे संसार में भी ना होते जो जैसे हमारे पर क्रियाएं की जा रही हैं। क्या इस देह के लिए, किसके लिए? इस देह को मिटाने के लिए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। असली देह, असली अंतरात्मा तो वो सोल है, वो रूह है, वो आत्मा है जिसके लिए हम संसार में आए हैं। किसी के लिए कभी बुरा ना सोचा, ना सोचना है, ना करना है, क्योंकि सब उस मालिक के बच्चे हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी के आके तो सभी संगत मिलके यही बेनती करो, यही अरदास करो, सभी मिलके। बहुत संगत है गुरु महाराज जी कि जो भी ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद उनके ऊपर भी बख्शो कि वो ये काम ना करें। कल क्या होगा उनके साथ। जैसे हम इस टाइम तड़प रहे हैं अपने शरीर की वजह से, क्यों कि ये दूसरों के दिए हुए दुख हैं, अपने दुख नहीं है, ये दूसरों के दिए हुए हैं जो हम आज सहन कर रहे हैं। कितने सालों से ये सब चलता आ रहा है, पर हम उसके बच्चे अनजान हैं, नादान हैं, कुछ समझ ही नहीं हमें इस बात की। ना भगवान हमें ऐसा समझाए, ना समझने दे। बस हम तो यही चाहते हैं संगत जी, श्री गुरु महाराज जी हमें अपना बना ले, हर पल अपने चरनी शरनी रखे, हमारे को अपने चरणों में निवास स्थान दे कि इन हाथों से बुरे कर्म ना हो, बुरे काम ना हो, इन हाथों से अच्छी सेवा हो, सबकी सेवा करते रहें, सबके दुख दूर करवाएं। जितनी भी सेवा हमसे हो पाए उतनी सेवा करवाएं मेरे मालिक सच्चे पातशाह। इन आंखों से दर्शनों की दात बख्शना, और ये जो नींद का जो पसारा पड़ जाता है इसको भी दूर भगा दो। बहुत नींद आती है, फिर थकावट की वजह से आती है, क्यों पता नहीं भगवान जी। किसी टाइम तो बहुत नींद आती है, रात को आती नहीं, और सारा दिन जब पाठ पे बैठो तब भी नींद आती है, झपकी लग जाती है। तो गुरु महाराज जी अपने बच्चों का आशीर्वाद दो, अपनी दृष्टि मेरा भरे हाथ रखना कि बच्चे को, आपकी बेटी को ज़्यादा नींद ना आए, और जो आपका नित्य नेम करे श्रद्धा भावना से,
उस भाव से जो हर पल आप हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारे अंग संग सहाय हो। आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है मेरे दातार सच्चे पातशाह। हम आपको कैसे भूल सकते हैं मेरे गुरु महाराज जी, मेरे शहंशाह, कि आपने बोला कि बेटी तू अपने बेटे का दुख नहीं देख रही है, और उसके लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो करवा के कटवा ले कि तेरे बेटे का दुख दूर हो जाए। तेरा बेटा रोता है आधी रात को, उसका सत्संग सुन ले तो उसके कष्ट कट जाएंगे, वो तेरे से सारी बात करेगा। संगत जी, गुरु महाराज जी तो अपने बच्चों की हर पल, हर श्वास श्वास में, हर रोम रोम में इतना ध्यान करते हैं। मैंने तो गुरु महाराज जी को बोला था कि आप किसी भी रूप में जाओ, उसके बच्चे और बेटी को लेके आओ, बिल्कुल शांत स्वभाव बना दो उसका, कुछ ना बोले ना मैं बोलूं, मैं तो बोलूं ही ना, बिल्कुल मैं शांत रहना चाहती, बिल्कुल चुप रहना चाहती हूँ। आप अपने छोटे बेटे को बिल्कुल शांत कर दो और शांत कर दो, बिल्कुल चुप ही रहे, कुछ ना बोले। बार बार आपका बेटा यही रिपीट करता है कि आप ऐसे बोलोगे, वैसे करोगे, लड़ो। क्यों लड़ेंगे हम, क्यों बोलेंगे हम? संगत जी, कौन माँ होगी जो अपने बहू के साथ लड़ती रहेगी और लड़ती होगी? मैं कभी भी नहीं लड़ी, बस उसी का जवाब उसी को देती थी कि ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी, हमारी बेटी हमारे को समझने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रही है वो। आप सब गुरु महाराज जी के आगे अरदास करो संगत जी कि बेटी को भी सद्बुद्धि दें, समत प्रदान करें, देरोग्यता प्रदान करें, स्वस्थ हो जाए और अपने नन्हे से फूल से वो भी देख रहा होगा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे नहीं है। असली तो दाद का परिवार ही होता है ना। तो उस बच्चे को ले आओ अपने घर, कोई बात नहीं, हम दूर से देख लेंगे। मेरे परम पिता परमेश्वर नहीं बात करेंगे, अगर नहीं हमारे से बात करना चाहती तो नहीं करेंगे, हम दूर से देख लेंगे, दूर से देख के खुश हो जाया करेंगे। संगत जी, हम तो बार बार गुरु महाराज जी से यही बेनती करते आए हैं कि दूर से देख लें, कोई बात नहीं, नहीं बात करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बात करना चाहती है तो कोई बात नहीं। पर जो बेटा आपका गुरु महाराज जी रात रात को रोता है तो मैं नहीं जानती, मैं सत्संग भी सुन लूँगी, पर उसके मन के जितने भी गुब्बार है बाहर निकलवा दो, नहीं तो मेरी तरह वो भी अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। संगत जी, मुझे बता दो, मुझे सिखा दो कि कैसे परिवार में रहना या कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं उस मालिक की बहुत अनजान बेटी हूँ, बहुत नादान बेटी हूँ, छोटे बच्चे की तरह हूँ। मन में कोई भाव नहीं है किसी के लिए भी। गुरु पहले भी शांत था और अब भी शांत गुरु महाराज जी ने करवा दिया। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मैं यही पुकार करती हूँ, अब दुख और ना, आपने बोला था खुशियों की दिवाली है तो खुशियों इस जीवन में भर दो, अपने बच्चों के जीवन में खुशियाँ भर दो। जो आप जी के बच्चे दुख न देखे, बहुत दुखी है बड़ा बेटा, बहुत दुखी है। एक माँ हूं ना, उसके दुख दूर करो। क्या तो तूने शादी नहीं करवानी थी बच्चे की पहले,
करवा दिए, तब उसके कष्ट दूर कर दो। अंदर से बहुत दुखी मैं भी जानती हूँ कि तेरा बच्चा बहुत दुखी है। अपने बच्चे को दुख दूर करो। ये सब गुरु महाराज जी आप भी कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। मुझे दिवाली का यही तोहफा दो कि तेरा बच्चा खुश रहे, और मुझे वचन बंदगी दो कि हर पल शांत होके तेरा सिमरन, तेरा ही ध्यान करती रहो। मन में कोई भी विचार न उठने पाए। ये दर्द बहुत भयानक है। गुरु महाराज जी, सब बच्चों को देखती हूँ मैं, आपकी सब बेटियों को देखती हूँ, कितनी खुश है। फिर मेरे भाग्य में खुशी क्यों नहीं? मैं तो तुझसे तुम्ही को मांगती हूँ। मैं कुछ नहीं मांगती कि अपने लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा, बस यही चाहिए। आप बोलो, आज्ञा करो, टेलीपैथी में बताओ, तो मैं जाके ले आऊं उस बच्ची को, उस तेरे बेटे का घर बत्ते फूले, खुशहाल बने। कोई नहीं, मैं फिर दोबारा नहीं भी हो जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा नहीं होने से, मुझे कोई कष्ट नहीं होएगा। मुझे खुशी मिलेगी तब जब तेरे बेटे का परिवार बस जाएगा। मेरे मालिक, अगर मैं तेरी बेटी हूँ तो मुझे बस अपना बना ले, और मेरी यही पुकार सुन ले। तू मेरा और मैं तेरी हूँ, और अपने बच्चों का परिवार में खुशियाँ दे दो। मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ, सिर्फ मैं आपको, आपसे ही मांगती हूँ। मुझे भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तेरी बेटी हूँ बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सब परिवार वालों बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। परम पिता परमेश्वर आप सभी को दिवाली की शुभ आशीर्वाद दे, बहुत बहुत आशीर्वाद दे कि आपका परिवार भी खुशियों से भरपूर रहे, और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सदा के लिए अंत तक आप सब परिवारों पर बना रहे। यही मेरी अरदास है। सभी को खुशियाँ देना, सभी के दुख दूर करना, सब हंसते खेलते रहे और खुशहाल जीवन जिए। संगत जी, मैं सब सारी संगत से माफी मांगती हूँ कि बेटी से, बहन से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना। गुरु महाराज जी, गणपति देव महाराज जी, आपसे भी माफी मांगती हूँ। पितृ देवताओं से भी माफी मांगती हूँ। कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। श्री गुरु महाराज जी, आपसे भी माफी मांगती हूँ। सभी देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ कि बेटी से भूल चूक हुई तो क्षमा कर देना, और आशीर्वाद देना अपने बच्चों को। सदा के लिए अंत तक आपके साथ जुड़े रहे। हर पल आप जी का सिमरन, आप जी का नाम जाप करते रहे। आप जी की भजन बंदगी
अमृत वेले का नित्य कभी न छूटे। हर पल तेरा नित्य करती रहो, तेरा ध्यान करती रहो। जो भी सेवा अपनी बेटी से करवाओगे, इन हाथों से सेवा करवाते रहो, इन आंखों से दर्शनों की दात बख्शते रहो और हाथों से सेवा करवाते रहो। जो तेरी बेटी के पाँव है, आपके दरबार पे चल के आए, बुलाओ अपने दरबार पे अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। अपने दरबार पे बुलाओ। रोम रोम में बस जाओ तुम, मेरे रोम रोम, मेरे अंग संग साई। ऐसे बस जाओ, ऐसे बस जाओ। बस तू ही हो मेरा, तेरे सिवाय मुझे कोई और नजर ना आए। तेरा ही आसरा, तेरी आस, तेरे विश्वास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। भूल चुक हुई हो तो अपनी बेटी को माफ कर देना और आगे के लिए अच्छा सत्संग करवाना और खुशियों भरा सत्संग करवाना कि जब आपकी बेटी अपना घर परिवार संभाल ले, परिवार से अलग न रहे, अपने परिवार को परिवार समझे, उसकी सद्बुद्धि दो, उसकी बुद्धि को पलट दो, समत प्रदान करो कि परिवार के साथ मिल के रहे। इस माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस माँ के हाथों से सेवा करवाते रहो सबकी। आप हमारे माता पिता हैं, सब कुछ आप ही है। भाई भाभीयों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ सभी को, जो आप कह रहे थे, जो उनके थोड़े बहुत काम रह गए थे पूरे करवा दी। आप जी का लख लख शुक्राना, मायके वालों की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, आपके श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मैं गुरु जी के सामने ही खड़े होके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मंगलवार का शुक्राना कहते समस्त मंगलों को नष्ट कर देता है, सब मंगल ही मंगल होता है। गुरु जी आज 28 साल बाद भी शादी के मैं बहुत ही खाली हूँ। मैं इतनी खुश हो रही थी कि इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। इतने सालों बाद आपकी, पहले तो मैं ये शुक्राना करूँगी, इतने सालों बाद ये मेरे साथ दिवाली की शॉपिंग करने गए और सारे रास्ते मुझे आपकी ब्लेसिंग्स मिलती गई। गुरुजी मैं बहुत धन्य धन्य हो रही थी उस दिन, जिस दिन मैं इनके साथ पहली बार शॉपिंग पे गई दिल्ली, पुरानी दिल्ली। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, खाने पीने में भी, किसी भी चीज़ में कुछ नहीं बोला। हमारी दिवाली बहुत अच्छे से शुरुआत हुई। लेकिन मेरी सास बहुत बड़ी वो है, मैं उसके बारे में कुछ बोल के अपने कर्म नहीं खराब करना चाहती। गुरुजी मेरी ये बहुत बड़ी अरदास आपसे है कि मैं उसे 4 बार मौत के मुंह से निकाल के लाई हूँ, उसकी सेवा की है। लेकिन अब गुरुजी मेरे बस की तो उसके लिए कुछ करना है नहीं, क्योंकि वो मन बहुत फाड़ चुकी है। आप उसे देखो, आप मेरी सास को देखो गुरुजी। मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ अपनी सास से। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरा शिवजी भगवान के मंदिर में दीपक लगाने का नियम था हर मावस को। कल सारी चीज़ें होच पोच हो रही थी। जब मेरे देवर को आज दिवाली मनानी है तो उसे कल हमारे साथ दिवाली मनाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी? मैं को ये नहीं समझ आता गुरुजी। गुरुजी मैं इन तांत्रिक क्रियाओं वालों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। गुरुजी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे दोनों बेटे, मेरे पति और मेरे ऊपर ऐसा चक्र बना दो अपना
कि हमारे ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया करे वो कटती हुई उसी के पास जाए, नहीं कट जाए, कोई ज़रूरत ही नहीं कि उसके पास जाए। अब वो करते-करते इंसान ऐसा दुखी हो जाए ना, ऐसा दुखी हो जाए कि वो कहे कि मैं अब क्या करूँ? और फिर बाद में गुरुजी, मेरा एक तो आपसे अरदास है गुरुजी, जो भी ये तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, कराते हैं, इनको आप स्वयं देखो। कहते हैं ना हमारे पास कोई सिद्धि है तो उसे यूज़ करना चाहिए अच्छे कार्य के लिए। गुरुजी आप तो परमपिता परमात्मा भगवान शिव हो। आप जब इस धरती पे आए तो आपने सबके ब्लैक मैजिक काटे, सबको वो करा। इसीलिए आप अपने चोले में ज़्यादा समय ना रहते हुए ब्रह्मलीन हो गए। और ब्रह्मलीन होने के बाद हमें आपका आशीर्वाद वही उसी तरह से मिल रहा है जैसा आपके चोले में था। काश मैं ये सोचती हूँ कि मैंने आपको आपके चोले में देखा होता गुरुजी। आपके पास एक बार आई होती, लेकिन वही एहसास मुझे आपके सामने खड़े होके भी होता है। मैं कभी आपके सब सब लोग आपका स्वरूप बोलते हैं, मैं गुरुजी बोलती हूँ, मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ, गुरुजी के सामने जा रही हूँ। क्योंकि गुरुजी जो एहसास मुझे होता है, वो शायद किसी को नहीं होता होगा। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी, मेरे जीवन में मुझे नहीं पता था मैं मांगलिक दोष की हूँ। गुरुजी, मुझे ये बात पता चली अपनी शादी के 33 साल क्या कहते हैं 24 साल बाद कि मैं मांगलिक दोष की हूँ और मेरे पति नॉर्मल है। यही कारण सबने बताया, पंडितों ने, कि मेरे जीवन में इतने कष्ट इसीलिए आए कि मैं मांगलिक दोष की हूँ और ये नॉर्मल है। गुरुजी, वैसे तो मैं जब से आपकी शरण में आई हूँ, ये आप भी जानते हो, मैं कभी किसी पंडित के पास नहीं गई, ना किसी को पत्री दिखाई, ना कुछ कहा। मैं बस आपसे अरदास करती हूँ, आपसे ही गुजारिश करती हूँ। कल का दिन जो भी मेरे घर में हुआ, जैसा भी हुआ, क्या वह सही हुआ गुरुजी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिवाली की रात इतनी दुखी हुई हूँ, इतनी परेशान हुई हूँ। गुरुजी, मेरे अंदर चालाकियाँ नहीं है, मैं इन लोगों की चालाकियाँ नहीं समझ पाती। गुरुजी, कल नजफगढ़ वाले बाबा जी आए, वो बिल्कुल आपके जैसे ही दिखते हैं। उन्हें मैंने गिफ्ट दिया, आपको ही सोचते हुए अपने बच्चे से दिलाया, क्योंकि गुरुजी मेरा जीवन तो हो चुका, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो गई है। मैं अपने बच्चों का भाग्य चमकाना चाहती हूँ, उन्हीं के हाथ से दान पुण्य कराती हूँ। मेरे बड़े बेटे को तो बिल्कुल ऐसा कर दिया है जिसकी कुछ हद नहीं। वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। आपको सब कुछ पता है, हाँ, आपकी शरण में आने के बाद वो बहुत कुछ सही हो गया है, लेकिन समय समय पर इस पर तांत्रिक क्रियाएं करके परेशान करते रहते हैं। गुरुजी, हमारे पास तो आपका हाथ है, आप समस्त तांत्रिक क्रियाओं को काट देते हो गुरुजी। गुरुजी, मेरा शुक्राना बहुत बड़ा हो रहा है, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं आपसे 24 अगस्त से 24 से जुड़ी थी और गुरुजी अभी 25 आया है, 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में मैं बहुत सुखी हो गई हूँ गुरुजी। मैं ये नहीं कहती कि मुझे सुख नहीं मिले, मुझे आपसे बहुत सुख मिले। मैं यही जो मार्गशीर्ष मास है, इसके बाद जो 2 नवंबर नहीं 2 दिसंबर को मैं अपने उनसे गुरुजी से दीक्षा लेके आई थी। तो मैं जब उसके बाद में कार्तिक का महीना आया, मैं उनकी पूजा करती थी, गुरुजी बोलती थी, लेकिन आंखें बंद करने पे मुझे दर्शन आपके होते थे। तो मैं कहती थी इन गुरुजी की मैं महिमा तो बहुत जानती हूँ, लेकिन जब मैं अपने गुरुजी को पुकारती हूँ, उनके लिए बोलती हूँ, तो मुझे दर्शन छतरपुर वाले गुरुजी के होते हैं। मुझे नहीं पता था मेरे गुरुजी इतने महान नहीं हैं जो धरती पर हैं, अभी अपने चोले में हैं वे इतने महान नहीं हैं। उनके अंदर मेरे को कभी गुरु वाली फीलिंग भी नहीं आई। उनसे मैंने जब कभी भी कुछ भी बात कही, हाँ, उन्होंने, मैं मानती हूँ, उन्होंने मेरे से पैसे बहुत लिए और जिसकी कुछ हद नहीं। मेरे को गुरुजी आज तक हर किसी ने ठगा है, हर किसी ने। इवनली गुरुजी, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, साईं बाबा ने मुझे जब बोला था, उनकी एक किताब है प्रश्न आपके उत्तर, साईं बाबा के, उसके द्वारा बोला था, तुम कुछ भी बोलना बहुत सोच समझ के बोलना, अन्यथा जिस साईं के लिए आप इतना अहंकार करते, इतना वो करते कि मेरा साईं है, मेरा साईं है, वो साईं भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आज इस बात को भी 15 साल हो गए। यदि साईं चाहते तो क्या उस समय मेरे ज़बान से वो शब्द निकलवाते जब मेरा भाई बोल रहा था कि बता ये सब जो हो रहा है क्या है? मैंने कहा मैं तो जब भी साईं बाबा को याद करके सोती हूँ तो साईं बाबा तुझे दिखाते हैं और भाभी को कि तुम दोनों ही ये सब कुछ करा रहे हो।
गुरुजी उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं कभी सुख से नहीं रही। चारों तरफ से मेरे को इतने कष्ट मिले। मैं साईं बाबा को दोष नहीं देती। कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया जब होती है तो इष्ट को बंधवा दिया जाता है। मेरे साईं को बंधवा दिया कि वो मेरे लिए कभी कुछ कर ही ना पाए। इवनली मैं कभी साईं बाबा की कुछ भी पूजा पाठ छोटी सी भी करती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत हानि होती है। बहुत हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि, घर में कलेश, ये सब कुछ बहुत होता है। गुरुजी, शायद साईं बाबा ने ही मुझे आपके पास भेजा कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, गुरु है, गुरुजी करेंगे। गुरुजी, मेरे मन की व्यथा जानो। जिस जिसने मेरे साथ जो जो किया है आप स्वयं जानते हो। मैं कहाँ गलत कहाँ सही हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई भी किसी को कुछ नहीं कहना, आपको सब कुछ पता है। गुरुजी, न्याय करो, अब न्याय करो। बस मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने पति और दोनों बच्चों का खूब सुख भोगूँ, उनके साथ में बहुत सही से रहूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चों का परिवार हो, मेरा परिवार हो, और मैं अपने उसमें हँसती खेलती रहूँ। गुरुजी, आपको ही पता है मैं दोनों बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती। मेरे बड़े बेटे को बहुत बुरी तरह से वो कर रखा है, लेकिन मैं उसके साथ भी भेदभाव नहीं करती। भेदभाव करना मेरी फितरत में ही नहीं है गुरुजी। गुरुजी, आज मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। कभी भी आज तक मैंने इतना बड़ा सत्संग नहीं करा। गुरुजी, ये सत्संग भी है, अरदास भी है और मन के दुख भी है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ। उसके पहले दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्रभु, दया के महासागर, करुणा निधान, मेरे जीवन की कश्ती के आप पतवार हो, मेरे परिवार के हमारे पालनहार हो, हमारे जीवन में हर एक चीज उपलब्ध करके देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। हमें कोई आँच ना आए, हमें कोई दुख ना पहुँचे, हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई मुसीबत में हम ना हो, इसका आप पल पल ध्यान रखते हो। इसके लिए दाता कितना भी शुक्राना करूँ कम है। इसके लिए कोटि कोटि पल पल आपका शुक्राना है मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आपका हमेशा जो मैसेज रहता है, जो हमारे लिए पल पल करते हो, उसमें भी आपका हमेशा प्यार रहता है। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर चीजों का शुक्राना, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ आपका शुक्राना मैं न करूं। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। बाबा, आपका मैसेज है, मैं कदी कदी टेस्ट लेवी लिंदा है ते घबराया ना कर। ये परीक्षा तेनू दुनिया विच जीना सिखाने लई, स्ट्रोंग बनाने लई होंदी है। रास्ता जिन्ना मर्जी औखा होवे, पर तू हुन सब पार कर लेना। तेरे विच हुन बहुत हिम्मत है। सब कुछ आप करन लई तू बहुत सबर किता है। ते हुन तेरी परेशानी दा अंत
समा आ गया है, शुक्र कर, कल्याण कितना, जा ऐश कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, मैं भी आऊँगा, सब मेरी देख रेख में होगा, विश्वास रख अपने गुरुजी पे, शुक्राना कर दे रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा ये मैसेज कितना कितना प्यार भरा है, कितना प्यार भरा है बाबा, बहुत बहुत प्यार भरा शुक्र आपका मैसेज। और इसमें कितनी आपकी मेहर है, मतलब कितनी मेरे लिए, मतलब अपने भक्तों के लिए, सबके लिए आप सब भक्त, सब संगत परिवार आपके लिए समान है, आपके पास कोई ना ऊंचा है, कोई नीचा है, इसके लिए भी आपका शुक्राना। और ये मैसेज में कितना कितना आपने प्यार से सब जो समझाया है, जो एक पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाता है, लेकिन आप तो साक्षात प्रभु महाशिव जी प्यारे गुरुपा, आप परमात्मा होके, ईश्वर होके, सब जानी जानो, बिन बोले सब जानते हो, और इतनी मेहर करके भी कभी नहीं जताते हो। लेकिन आपका जो मैसेज पढ़ती हूँ ना बाबा, वही मुझे एक टॉनिक दे देता है, एक नई ऊर्जा भर जाती है मेरे में, आपकी शक्ति की ऊर्जा मुझे मिलती है, और एक अनोखा सुकून मिलता है, एक अनोखी शांति मिलती है बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। विश्वास रख, मेरा तो पूरा विश्वास ही आप हो, मेरा जीवन का संसार ही आप हो, अब तो सब कुछ आप हो, पूरा पूरा विश्वास है बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपका ये जो आशीर्वाद है, तो बस शुक्र करी, कल्याण किता, जा ऐश कर बाबा। ये आशीर्वाद, ये वरदान दिए तो सब भक्त के चरणों में अरदास भी करते, तड़प, मतलब एक तड़प दे कि बाबा का कभी ये आशीर्वाद मिल जाए। तो परमात्मा ये आशीर्वाद लिए कि आपका कोटि 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्रभु। हर पल हर क्षण अंग संग रह के हमें उसका एहसास दिलाते हो, इसका शुक्राना। आंखों की पलक झपकते ही आप हमारे पास होते हो, जब हम पुकारते हैं तब आप तुरंत हमारे साथ रहते हो, लेकिन हम ना पुकारते हुए भी हमें बहुत बहुत परिवार सहित सबको संभालते हो। रात की एक, जब पूरा संसार सोता है तभी भी आप हमारे लिए, सबके लिए पल पल जागते रहते हो, हमारी रक्षा करते हो, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु सबका भला करो, सबको खुश रखो, और मैं आपके वारी, आप पे वारी वारी जाऊं बाबा। आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक हूँ, नतमस्तक रहूं, आपकी सारी बलाएं मैं ले लूं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे आपका पूरी बेटी होने का सौभाग्य जो आपने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बड़ा मंदिर जो स्वर्ग समान है, जो चारों धाम की यात्रा फल वहाँ कदम रखते ही मिल जाता है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद है। और इतना पवित्र धाम आपने आपकी सारी प्यारी बेटियों के लिए मायके के रूप में दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। हम बहुत 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 आनंदित होके बोलते हैं बाबा, हम बहुत भाग्यवान हैं जो आपने हमें मायका, प्यारे गुरु का, एक पिता का
घर हमें दे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना। हो बाबू प्यारे, मेरे पैर की चलते की सांसों की सरगम, हो निस दिन तुझे पुकारे ओ बाबुल प्यारे। मेरी हर सांस तुझे पुकारे बाबा, हर सांस में समाया हुआ है मेरे दाता, मेरे मालिक। हर पल हर क्षण चुप रहना। जय गुरु जी, जय जय गुरु, सबका कल्याण करो दाता। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। परमात्मा